अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और टॉपिक जो है आज का इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है दैट्स रिगार्डिंग द डायज़ोनियम साल्ट्स। डायज़ोनियम साल्ट्स नाउ व्हाट डायज़ोनियम साल्ट जो होते हैं जिनमें डाइजो ग्रुप होता है, डायज़ो ग्रुप, those are called as the diazo compounds which contain the diazo group, that is the N2 group functional group. Those compounds are called as the diazo compounds, and these diazonium salts, they are of two types: aliphatic diazonium salts and aromatic और बेंजीन, जिसको हम कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम salts or these aromatic diazonium salts. Out of the two, the aliphatic diazonium salts जो होते हैं they are highly unstable. इनकी फार्मूला है first, that is the aliphatic diazonium salts. We have the benzene diazonium salt or aromatic diazonium salts. इनकी फार्मूला है R N positive triple bond N and X. X may be any anion. while इनकी फार्मूला है AR and triple bond and positive triple bond and X negative. Where R जो है R is an alkyl group and AR is an aryl group. N2, that is the diazonium group, and XX may be anion, any anion. X negative is any anion. It may be Cl negative, Br negative, SO4 negative, 2 negative, etc. Anions or SO4 negative anion. सॉरी, यहाँ पर क्या है, HSO4 negative, Cl negative, Br negative, HSO4 negative, etc. So diazonium salts which contain the diazo group, those are called as the diazo compounds. Diazo compounds are of two types, that's aliphatic diazonium compounds and aromatic diazonium compounds. Aliphatic diazonium compounds की general formula जो है that's R and triple bond N and X, while as इनकी जो है aromatic diazonium salt की जो formula है that is the AR and triple bond X negative. Where R is an alkyl group, AR is an aryl group, X negative may be an any anion, and the citus the Cl negative, Br negative, IHSO4 negative, etc. Now we have the stability of these diazonium salts. Stability. Stability of diazonium salts. As we know, we have the two types of diazonium salts, that is the aliphatic diazonium salts and aromatic diazonium salts. Number first, जो aliphatic diazonium salts होते हैं non triple bond and it is positive and X negative, they are highly unstable. Highly unstable. एंड जब ये हाईली अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं रैपिडली, दे गेट डिकम्पोज्ड इनटू द R पॉजिटिव प्लस N2 प्लस X नेगेटिव. वायर दिस R पॉजिटिव क्या है, इट्स अ कैटायन
cation. So they are highly unstable. जो aliphatic diazonium salts होते हैं, they are highly unstable and they readily they get decomposed into R positive, that's a carbocation, and two nitrogen gas, and the X negative is eliminated. So we have here the carbocation is formed. Now ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? इसीलिए अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें जो ये डायजो ग्रुप है, इट इज ए बेस्ट लीविंग ग्रुप. ये हमेशा ट्राई करता है कि टू लीव फ्रॉम दिस कंपाउंड as N2 gas goes. It is highly stable because of the highly or exceptionally high leaving ability of diazo group as N2 aliphatic diazonium salts are unstable. So we have first point, जो एलिफेटिक कार्बोकैटायंस होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल. व्हाई दे आर हाईली अनस्टेबल? क्योंकि जब ये अनस्टेबल होते हैं तो दे रेडीली डिकम्पोज इनटू द कार्बोकैटायन एंड द नाइट्रोजन गैसेस इवॉल्व. नाउ व्हाई दे आर हाईली अनस्टेबल, उसका आंसर ये है कि जो इनमें डायजो ग्रुप होता है इसकी टेंडेंसी होती है टू लीव फ्रॉम द कंपाउंड एज द नाइट्रोजन गैस. सो नाइट्रोजन जो है, डायजो ग्रुप जो है, देयर इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड हेंस इट ट्राइज टू गेट eliminated from the compound as N2 gas goes. So that leads to the highly unstable nature of these aliphatic diazonium salts. Now we have aromatic diazonium salts. As compared to the aliphatic diazonium salts, aromatic diazonium salts are somewhat high, are more stable as compared to that of the aliphatic diazonium salts. We have number second, we have aromatic diazonium salts which are more stable, than that of the aliphatic diazonium salts. Number second, we have aromatic aromatic or benzene diazonium salts. These are stable than aliphatic diazonium salts. Now why here also AR and triple bond N positive and X negative, ये भी डिकम्पोज हो जाता है and it results the formation of AR positive plus N2 plus X negative. यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, बट वो एरोमेटिक कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिफेटिक कार्बोकैटायन को. Therefore this aryl part does not allow the nitrogen diazo group to leave as N2 and hence that leads to the stability of the aromatic diazonium salts. को यहाँ पर ये डिफरेंस है कि why aromatic diazonium salts or benzene diazonium salt is more stable than that of the aliphatic carbocations, aliphatic these diazonium salts. The reason being that जो यहाँ पर in case of aromatic diazonium salt, benzene diazonium salt, जो aryl part बनता है यहाँ पर aryl carbocation जो बनता है, that is less stable as compared to the aliphatic and hence it does not allow the diazo group to leave and that leads to the stability of the benzene diazonium salts. Now we have preparation of diazonium salts. Now we are going through the topic that is the benzene diazonium salt, that is the aromatic diazonium salts, because they are stable as compared to that of the aliphatic diazonium salts. Now we have preparation of diabenzene
sorry, it is benzene diazonium salt. प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम साल्ट। हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम इसको प्रिपेयर करते हैं व्हेन वी टेक द सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड उसको हम ऐड करते हैं प्राइमरी अमाइनस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइनस, तो वहां पर बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनता है। सो व्हेन सोडियम नाइट्राइट is added to primary amines in presence of HCl, benzene diazonium salt is formed. So when sodium nitrite NaNO2 is added to primary aromatic amines in presence of HCl gives us benzene diazonium salt at a temperature of 273 to 278 Kelvin. जब हम ये रिएक्शन कराते हैं बिटवीन द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एंड सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 टू 278 केल्विन, वहां पर क्या बनता है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सो वी हैव C6H5NH2 that is primary aromatic amine which is called as aniline. इसको हमने ऐड किया है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 in presence of HCl gives me C6H5 and triple bond, and here we have positive and we have Cl negative plus water plus sodium chloride. In presence of that the sodium chloride is formed. This reaction, जो ये reaction यहाँ पर होती है between the प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एंड सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन को। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। है क्या डाइजोटाइजेशन रिएक्शन? ये सिंपली है कन्वर्शन ऑफ द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का कन्वर्शन है इनटू द डायजोनियम साल्ट्स विद when we treat it with sodium nitrite in presence of hydrochloric acid. Now we have the mechanism of this reaction, how the reaction takes place, how benzene diazonium salt is formed, that mechanism of diazotization reaction. We have mechanism of this reaction or mechanism of diazotization reaction. Mechanism of diazotization reaction. सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पर रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एंड इट गिव्स मी NO2 प्लस NaCl। अब ये HNO2 क्या है? दिस इज नाइट्रस एसिड। यहाँ पर है HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट ब्रेक्स, इट गिव्स मी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव जो यहाँ पर निकला, इट विल रिएक्ट विद दिस नाइट्रस एसिड in order to generate the electrophile.
So the reaction of the sodium nitrite with aromatic amine, primary amine, in presence of hydrochloric acid is an example of the electrophilic substitution reaction. क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें generate करना है electrophile, and then that electrophile that reacts with that of the aromatic amine. So we have, हमने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट हमने लिया, इसको हमने ऐड किया है HCl, तो यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रस एसिड बन गया और सोडियम क्लोराइड। अब हमें किसके साथ गर्ज है, हमें किसके साथ गर्ज है, हमें सोडियम नाइट्रस एसिड के साथ है कंसर्न। फिर हमने कहा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, another molecule of hydrochloric acid, it breaks, it gives me H positive and Cl negative. Now this H positive, it will react with this nitrous acid. So we have here like this N double bond OH. This is HNO2 nitrous acid, यहाँ पर है lone pair of electrons plus H positive. अब ये H positive कहाँ से आ गया, ये H positive है which comes from the HCl. What will happen? This can donate its electron pair to the H positive. So we have O double bond N dash OH2 positive. क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दी, तो इस पर कौन सी चार्ज आ गई, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, माइनस वाटर मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पर क्या बन गया, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम ion. Now this nitrosonium ion, it will react with what? It will react with the aromatic primary amine. So हमने यहाँ पर जनरेट किया है इलेक्ट्रोफाइल। हमने कैसे जनरेट किया है इलेक्ट्रोफाइल, हमने सिंपली लिया सोडियम नाइट्राइट, उसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पर नाइट्रस एसिड बन गया। अब वो नाइट्रस एसिड जो है, इट विल रिएक्ट विद अनदर H पॉजिटिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम द HCl, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया, वाटर एलिमिनेट हो गया, तो नाइट्रोसोनियम, दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन इज फॉरवर्ड व्हिच देन रिएक्ट्स विद द नाइट्रस एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन। अब वो कैसे रिएक्ट करता है इसके साथ, वी हैव, इसको मैं रब करूंगी, सो हमने जनरेट किया है नाइट्रोसोनियम आयन। अब वो नाइट्रोसोनियम आयन जो है, दैट विल रिएक्ट विद द एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन एनिलीन। एनिलीन का जो नाइट्रोजन एटम है, वी हैव NH2 which possesses the lone pair of electrons. Now it will react with N double bond O positive. इसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दी, तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन पर कौन सी चार्ज चढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज। सो वी हैव हियर we have benzene, phenyl ring, we have N, it is H, NH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ, N के साथ, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ये एलिमिनेट करेगा H पॉजिटिव, it gives me H positive here, and we have this compound N H double bond N double bond O. Clear? Now this H positive will react with this oxygen possessing the lone pair of electrons, H positive. It will go with this oxygen, N H double bond N O NOH. It is here positive charge, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ इन्वॉल्व की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये इस पर कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज। नाउ हियर वी हैव दिस हाइड्रोजन एटम which I will see like this, draw like this। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से OH
यहाँ पर another H पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पर ये इसके साथ ये यहाँ चला जाएगा इसके साथ, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ मैं ऐसे दिखाऊंगी। तो नाइट्रोजन, वी हैव नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एन, क्योंकि ये अगर ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है तो सिंगल बॉन्ड इज दियर, बट ये इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करता है तो फिर से डबल बॉन्ड आता है एन और एन के दरमियान। नाउ वी हैव ओ एच possessing the lone pair of electron। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गई। नाउ इट विल रिएक्ट विद अनदर एच पॉजिटिव आयन, यहाँ आएगा तो इस पर कौन सी चार्ज चढ़ेगी, यहाँ ही पर दिखाएंगे नीचे ही एच पॉजिटिव, ये एच पॉजिटिव यहाँ आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी, बन गया यहाँ पर वाटर, पॉजिटिवली चार्ज्ड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड हियर, एन डबल बॉन्ड एन OH2 पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, ये लोन पेयर इन्वॉल्व करता है बॉन्ड फॉर्मेशन विद दिस नाइट्रोजन, सो वी हैव हियर माइनस वाटर मॉलिक्यूल एंड देन वी हैव द कंपाउंड N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, एंड वी हैव हियर, वहाँ पर हमने जनरेट किया था HCl से H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एंड दैट Cl नेगेटिव विल रिएक्ट विद दिस कंपाउंड एंड इट गिव्स मी, यहाँ पर Cl नेगेटिव, C प्लस Cl नेगेटिव आएगा, एंड हियर वी हैव दिस कंपाउंड दैट इज द बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। पॉजिटिव, तो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बन गया। इस तरह से बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। सो डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन में आपने याद रखा कि सोडियम नाइट्राइड जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पर हमें फाइनली जनरेट होता है, फर्स्ट वी गेट द नाइट्रस एसिड फिर से रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और फाइनल वहाँ पर हमें न्यू इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, that is the N double bond O, it is positive, that is the nitrosonium ion. This nitrosonium ion, it will react with the primary aromatic amine, that is the aniline, and go through the following steps. These steps are involved, and finally we get the compound, that is the benzene diazonium salt. This is the mechanism of the diazotization reaction. Now we have the nomenclature of diazonium salt. Nomenclature of we have another part, that is the nomenclature of diazonium salts. नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं हम सुफिक्स करते हैं डायज़ोनियम to the name of the aromatic compound followed by the name of the anion. So while naming the compounds, we suffix diazonium to the name of the aryl या aromatic compound followed by the name of the anion. हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सुफिक्स, हमें लगाना है डायज़ोनियम नेम जो हमें सुफिक्स करना है किसको, द एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है डायज़ोनियम साल्ट्स में उसको हमें सुफिक्स करना है डायज़ोनियम, एंड देन फाइनली वी ऐड द नेम ऑफ द एनायन. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द कंपाउंड लाइक C6H4
Hyo and triple bond, and it is positive, and we have here X negative और Cl negative. हमें इसको नाम देना है. What is the name? हमें डाइजोनियम सुफिक्स करना है, बाद में लगाना है किसको? द एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है यहाँ पे? दैट इज द बेंजीन. सो वी हैव बेंजीन. फिर हमें सुफिक्स करना है डायजोनियम. फिर हमें क्या लगाना है? नेम ऑफ द एनायन, दैट इज क्लोराइड. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास. सपोज हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है लाइक दिस. We have CH3 here. What is this compound? is called a toluene. इस तरह से आप लिख सकते हो या इस तरह भी आप लिख सकते हो. CH3 that is toluene. अगर मैं toluene को ऐसे लिखूं, ये मैंने toluene लिखा, then we have N triple bond, N positive, and here we have the Br negative. So name क्या आएगा? It is toluene. टॉलुइन डायजोनियम ब्रोमाइड. टॉलुइन डायजोनियम ब्रोमाइड जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, पहले हमें उसका नाम लिखना है. देन वी हैव टू सफिक्स द डायजोनियम. डायजो ग्रुप का नाम हमें फिर सफिक्स करना है. देन फाइनली वी हैव टू राइट द वर्ड ऑफ द राइट द नेम ऑफ द एनायन. इसी तरह से तीसरी एग्जांपल है हमारे पास. Suppose we have this compound NO2. यहाँ पर मैंने लिखा है टॉलुइन डायजोनियम ब्रोमाइड, लेकिन ये टॉलुइन जो है इसका जो मिथाइल ग्रुप है विच इज para to that of the diazonium group, so we can write it as para-toluene diazonium bromide. Here we have nitro and here we have N triple bond and HSO4 नेगेटिव. अब इसका नाम क्या आएगा? इट इज द बेंजीन, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? नाइट्रो. सो वी हैव पैरानाइट्रो. पैरानाइट्रो. फिर है बेंजीन. पैरानाइट्रो बेंजीन जो है दैट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड. फिर नेम हमें सफिक्स क्या करना है? डायजोनियम. डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड. सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट. या बाई सल्फेट भी लिख सकते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट भी लिख सकते हैं. हाइड्रोजन सॉरी इट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सल्फेट और बाई सल्फेट भी आप लिख सकते हो. सो इसका नाम क्या आएगा? पैरानाइट्रो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, or it is para-nitrobenzene diazonium bisulfate. तो इसका नाम आएगा ये. दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर. को नोमेनक्लेचर में आपने याद रखा, सबसे पहले हमें क्या करना है? नेम लिखना है एरोमेटिक कंपाउंड का, फिर उसको सफिक्स करना है द नेम ऑफ द सफिक्स हमें करना है उसको द डायजोनियम. फिर हमें नाम लिखना है किसका? एनायन का. So these are some of the examples where we named these compounds. This was about what are diazonium salts, what is the stability of diazonium salts, then we have preparation of diazonium salts and the nomenclature of diazonium salts. Inshallah, in the next video lecture we will go through the properties of diazonium salts. Thank you so much.